हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी शॉर्ट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5th ईवीएस चैप्टर 10 अर्थ आवर शेयर्ड होम पार्ट 2 स्टोरी 4 द स्वीट स्टोरी ऑफ शुगर। चीनी की एक मीठी कहानी। आइए समझते हैं। जस्ट एज चिलीज ट्रेवल टू इंडिया, शुगर ट्रेवल्ड फ्रॉम इंडिया टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जैसे मिर्च भारत में आई, वैसे ही चीनी भारत से दूसरे देशों में गई। लॉन्ग अगो पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड डिड नॉट नो अबाउट शुगर। बहुत साल पहले दुनिया के लोग चीनी के बारे में नहीं जानते थे। दे यूज्ड हनी एंड अदर नेचुरली स्वीट थिंग्स टू ऐड स्वीटनेस टू देयर फूड। लोग अपने खाने में मिठास बढ़ाने के लिए मीठी चीजों का इस्तेमाल करते थे। इस पिक्चर में ये आदमी गन्ने से जूस निकाल रहा है और ये दोनों जन जूस पी रहे हैं। It was in India that the method of making jaggery from sugarcane juice was first discovered. भारत में सबसे पहले गन्ने के रस से गुड़ बनाने की प्रोसेस डिस्कवर की गई। Over time, we found a way to make jaggery into sugar. समय के साथ लोगों ने गुड़ से चीनी बनाने का तरीका भी सीख लिया। This knowledge and technique spread to other parts of the world through trade and travel. ये नॉलेज और टेक्निक ट्रैवल और ट्रेड के जरिए दुनिया के दूसरे हिस्सों तक फैल गई। Did you know that even rice, mangoes and bananas from India found their way to other lands? क्या तुम्हें पता है कि राइस, मैंगो और बनाना भी भारत से दूसरे देशों में पहुंचे? Today, people from all over the world enjoy these gifts, but their journey began right here in India. आज पूरी दुनिया इन चीजों का आनंद लेती है, लेकिन इनकी शुरुआत भारत से हुई थी। Our meals are like world travelers, carrying stories and flavors from all around the globe. This shows us how deeply we are all connected. हमारा भोजन दुनिया घूमने वाले ट्रैवलर्स के जैसा है, जिसमें अलग अलग देशों की कहानियां और स्वाद जुड़े हैं। ये हमें बताता है कि पूरी दुनिया एक दूसरे से कितनी जुड़ी हुई है। Paper came to India from China through trade. Before that, we used palm leaves and bark to write on. Paper, कागज चाइना से व्यापार के जरिए इंडिया आया है। उससे पहले हम तब कागज नहीं था, इसीलिए लोग ताड़ के पत्ते या पेड़ों के छाल पर लिखा करते थे। Discuss. If you could choose one Indian food to share with the world, what would it be? ये पर्सनल चॉइस क्वेश्चन है, तो आपका आंसर अलग अलग हो सकते हैं। I would choose biryani to share with the world because it is tasty and loved by many people. What kind of new food items do you think will travel in the future? Which food? I think healthy food like millet, snacks and plant-based food will travel in the future. Story 5. The Mexican marigold moves into India. Mexican marigold, गेंदा फूल, भारत में आया। Did you know that the marigold flower is from Mexico? क्या तुम्हें पता है कि जो हम डे टू डे लाइफ में पूजा फेस्टिवल्स में यूज करते हैं गेंदा फूल, वो मैक्सिको देश से आया है। In Mexican culture, marigolds are special flowers used during festivals. मैक्सिको की कल्चर में गेंदा फूल त्योहारों में खास माना जाता है। From there, the marigold traveled across the world and to India, where it found a new home. वहां से गेंदा फूल दुनिया के कई देशों में पहुंचा और भारत में आकर बस गया। Perhaps it was the bright orange and yellow colors that we loved so much as it reminded us of our senses of warmth, celebration and spirituality. शायद इसके चमकीले पीले और नारंगी रंग हमें बहुत पसंद आए। Today, marigolds are seen everywhere in India, in temples, homes, weddings and festivals like Diwali. आज भारत में गेंदा मंदिरों में, घरों में, शादियों और दिवाली जैसे त्योहारों में हर जगह दिखाई देता है।
Is it not amazing how a flower from a land far away became such a big part of our celebrations? क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि दूर देश का फूल हमारे त्योहारों का इतना बड़ा हिस्सा बन गया है? Right. Why do you think both Indian and Mexican cultures use marigolds during their festivals? Both Indian and Mexican cultures use marigolds because the flower is bright, beautiful, and represents happiness, celebration, and positivity. Why do you think people in different countries include flowers in their celebrations? People in different countries include flowers in their celebrations because flowers make the place look beautiful, smell pleasant, and create a happy atmosphere. Long ago, Arab traders brought dates and lemons to India. In return, they took back Indian rice and cloths. बहुत समय पहले अरब व्यापारी डेट्स, खजूर और लेमन्स, नींबू को भारत लाते थे। बदले में वे भारतीय चावल और कपड़ा वापस ले जाते थे। Story 6. The cows that went to Brazil. Long ago, Portuguese traders took some Indian cows to Brazil. These cows were strong, gave good milk and did not mind the weather in Brazil. बहुत समय पहले पोर्तुगीज ट्रेडर्स कुछ भारतीय गायों को ब्राजील ले गए। ये गाय बहुत मजबूत थी, अच्छा दूध देती थी और ब्राजील के मौसमों में आसानी से ढल गई। Over time, these cows grew in number. Today, more than 3/4 of Brazil's milk come from three Indian cow breeds: Gir, Cancrez and Ongol. आज ब्राजील के कुल दूध का 3/4 से ज्यादा हिस्सा भारतीय गायों की ब्रीड है। कौन सी है? गिर, कांक्रेज, ओंगोल से आता है। They became so important in Brazil that their pictures are found even on stamps and coins. ये गाय ब्राजील में इतनी इंपॉर्टेंट बन गई है कि उनकी तस्वीरें स्टैम्प्स में और कॉइन्स, सिक्कों पर भी छपने लगी है। Right. What does this story tells us about animals moving from one place to another? This story tells us that animal can adapt to new places and can be useful and important in other countries too. Activity 4. With help of your teacher or an elder, find out the names of at least 5 different breeds of cows. अपने टीचर या एल्डर की मदद से cows के 5 different breeds के नाम बताओ। कौन से हैं? गिर, कंक्रेज, ओंगोल, शाहीवाल, रेड सिंधी. Make a list of a few things in your house or school that may have come from another part of the world. Find out where they originally came from. अपने स्कूल या घर के कुछ चीजों का लिस्ट बनाओ और फाइंड आउट करो कि वो ओरिजिनली कहां से है। आइटम्स, नेम्स, ओरिजिन, फ्रॉम. कौन से थिंग्स है? आइटम्स कौन से है? क्लॉथिंग. उनके कौन से क्लॉथ्स है? जीन्स. ओरिजिन फ्रॉम अमेरिका. फूड, फूड, पिज्जा. पिज्जा फ्रॉम इटली. स्पोर्ट्स, फुटबॉल. फुटबॉल कहां से ओरिजिन हुआ है? इंग्लैंड. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, गिटार. स्पेन. ट्री, यूकेलिप्टस, ऑस्ट्रेलिया. Web of life. These stories are not just about birds, plants, or objects. They are stories of people, journeys, sharing, and the blending of culture. ये कहानियां केवल बर्ड्स, प्लांट्स और कोई चीजों की नहीं है। ये लोगों और यात्राओं, शेयरिंग और संस्कृतियों के मेल की कहानियां हैं। We may speak different languages or play different games, but we all learn from and inspire one another. हम अलग अलग भाषा बोलते हैं या अलग खेल खेलते हैं, लेकिन हम सब एक दूसरे से सीखते हैं और प्रेरणा लेते हैं, इंस्पायर होते हैं. Whether it is a bird flying across the continents, a seed growing in a new land, or a practice like yoga. चाहे वो पक्षी हो, बीज हो या योग जैसे कोई परंपरा, सब हमें सिखाते हैं कि पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी है. Reaching every corner of the globe, it all reminds us of one big truth: we are all connected.
Our Earth is more than just land and water. हमारी पृथ्वी सिर्फ जमीन और पानी नहीं है. It is a living web of life where people, animals, plants and ideas travel, mix and grow together. यह जीवन का एक जाल है जहां इंसान, जानवर, पौधे और विचार एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मिलते हैं और साथ साथ बढ़ते हैं. By learning, sharing and caring for each other and our planet, we become part of that connection. जब हम सीखते हैं, बांटते हैं और एक दूसरे व पृथ्वी की देखभाल करते हैं, तब हम इस कनेक्शन का हिस्सा बन जाते हैं. अंकोर वाट इन कंबोडिया इज द लार्जेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड. अंकोर वाट कंबोडिया में है, यह दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है. भारत के बाहर भी हमारी संस्कृति से जुड़ी बहुत सी ऐतिहासिक चीजें हैं. Interview a grandparent or neighbor, ask them about a food item, songs or custom that was not there in childhood but is common today. Find out where did it come from. अपने दादा दादी या पड़ोसी से पूछो कि कोई ऐसा खाना, गीत या कोई रिवाज है क्या जो उनके बचपन में नहीं था लेकिन आज कॉमन है. फिर पता करो वो कहां से आया. यस, फूड आइटम है पिज्जा और वो इटली से आया है. From the stories you have read, list different things that came to India from other countries and those that traveled from India to the world. Then using two different color strings, trace their journey on a map. आपने ऊपर बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी, कहानियों स्टोरीज से ये लिखो कि कौन सी चीजें बाहर से भारत आई और कौन सी भारत से बाहर गई. दो अलग अलग कलर की स्ट्रिंग से उनका रास्ता मैप पर दिखाओ. जैसे चिली, पटेटो, टोमेटो अलग अलग कंट्री से भारत में आई और भारत से योगा, शुगर और चेस, ये चीजें बाहर के देशों में गई. तो ये सब चीज अलग कलर के स्ट्रिंग से आप मैप पे दिखा सकते हो. वन अर्थ वन फैमिली. There is a beautiful saying from ancient India, Vasudhaiva Kutumbakam, meaning the world is one family. भारत की एक सुंदर कहावत है, वसुदैव कुटुंबकम. इसका मतलब है पूरी दुनिया एक परिवार है. All people, animals, trees, rivers and even the air and sky belong to this family. इंसान, जानवर, पेड़, नदियां, हवा और आकाश सब इसी परिवार का हिस्सा है. We live together, depend on each other and share the same home, our earth. हम सब साथ रहते हैं और एक दूसरे पर निर्भर है और हम सब एक ही घर में रहते हैं, हमारे अर्थ में. When we see the world as one family, we learn to live with respect, care and love for one another and for the earth that supports us all. जब हम दुनिया को एक परिवार मानते हैं तो सम्मान और प्यार से रहना सीखते हैं. That is what वसुदैव कुटुंबकम teaches us. यही वसुदैव कुटुंबकम हमें सिखाता है. Earth is truly special. अर्थ बहुत खास है क्योंकि यही एक ऐसा ग्रह है जहां लाइफ एग्जिस्ट करता है. इट इज द ओनली प्लैनेट वी नो दैट हैज लाइफ. फॉर थाउजेंड ऑफ इयर्स इट हैज सपोर्टेड पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स. कई हजार सालों से ये लोगों को, एनिमल्स को और प्लांट्स को सपोर्ट किया है. अर्थ नीड्स केयर टू. When we care for the earth, we are caring for each other because we are all part of the same family. पृथ्वी को, अर्थ को भी हमारी देखभाल चाहिए, केयर चाहिए. Earth is not just our home. It is a gift we must protect for ourselves, for others and for the future. Earth सिर्फ हमारा घर नहीं बल्कि फ्यूचर के लिए एक गिफ्ट है जिससे हमें बचाना चाहिए. इस पिक्चर में एक परिवार, एक फैमिली अर्थ को पकड़े हुए हैं. इसके चारों ओर पेड़, प्लांट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, वाटर एनिमल्स सब इस पिक्चर में दिखाया है. इसका मतलब है ह्यूमंस, प्लांट्स, बर्ड्स, नेचर सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. हम सब मिलकर एक ही अर्थ पर रहते हैं और हमें इसे मिलकर संभालना चाहिए. डू यू नो The Ministry of Environment, Forest and Climate Change logo represents the balance between nature and human life.
भारत के पर्यावरण मंत्रालय का लोगो यह दिखाता है कि नेचर और ह्यूमन लाइफ के बीच बैलेंस होना जरूरी है. It reminds us that humans and nature are connected and must live in harmony. The logo tells us that caring for the environment means caring for ourselves too. हमें ये याद दिलाता है कि इंसान और नेचर एक दूसरे से जुड़े हैं और उन्हें मिलजुल कर शांति से रहना चाहिए. इसका मतलब ये है, अगर हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे तो हम अपनी खुद की भी रक्षा करेंगे. राइट. व्हाट डज वसुदैव कुटुंबकम टीचेस अस? वसुदैव कुटुंबकम हमें क्या सिखाता है? वसुदैव कुटुंबकम टीचेस अस दैट द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली. राइट द मीनिंग ऑफ वसुदैव कुटुंबकम इन योर ओन वर्ड्स. अपने खुद के शब्दों में इसका मतलब क्या होता है, लिखो. It means that all people, animals and living beings belongs to one global family. How can we live like one big family even when we are different? We can live like one big family by respecting each other, helping others and caring for nature. हमें एक दूसरे का और नेचर का सम्मान और ख्याल रखना चाहिए. Thank you.